This video is regarding cutaneous nerves, superficial veins and lymphatic drainage of upper limb. In this video, we will first discuss about what are the cutaneous nerves which supply the upper limb. So there are 15 sets of cutaneous nerve which supply the upper limb. Before discussing about these 15 sets, so 15 sets are means 15 nerves this side, 15 nerves this side. This is the anterior view of the hand. This is posterior view of the hand. Means upper limb. This is the posterior view of upper limb. The upper limb is supplied by 15 sets of muscles. This is the anterior. This is the posterior. Okay. Now, out of 15, we will first discuss about some of the specialties about these cutaneous nerves. These can any cutaneous nerves. So first point is about the upper limb. Out of 15 sets of cutaneous nerve, the supraclavicular nerve and intercostobrachial nerve, इनको छोड़ के बाकी 13 cutaneous nerves are originated from the brachial plexus, while the supraclavicular nerve is originated from the cervical plexus, and the intercostobrachial nerve is a branch of second intercostal nerve. Okay, now the next point is about the overlapping. So the overlapping of the region of supply of cutaneous nerve is present. Like you can see in this, that C6 supplies this region, C7 supplies this region, but there is a region where the C6 and C7 both supply. Okay, as you can see, this is the reason where the C6 and C7 both supplies. Now the next point is that the supply of muscles in the anterior region, the supply of skin on the anterior region is more than in the posterior region. मतलब distribution of nerves anterior region में ज़्यादा होता है as compared to the posterior region. Anterior region is called flexor compartment. The posterior region is extensor compartment. Okay. Now we will discuss every nerve from starting. So the first nerve is supraclavicular nerve. Supraclavicular nerve arises from the cervical plexus. Its root value is C3 and C4. Arises from the cervical plexus. It supplies the upper area of pectoral region as well as upper region of deltoid. Next is the upper lateral cutaneous nerve of the arm. This upper lateral cutaneous nerve of the arm is a branch of axillary nerve, which root value is C5 C6. So मैं लिख नहीं रहा, C5 C6. It supplies the lower region of deltoid and the lateral side of the arm. Next is the lower lateral cutaneous nerve of the arm. Lower lateral cutaneous nerve of the arm, which is a branch of radial nerve whose root value is C5 C6. मतलब ये भी C5 C6 है, पर लिख लेते हैं C5 C6, और ये भी C5 C6 है, lower lateral C5 C6. ओके, अब इनका काम क्या हुआ? मतलब ये लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म रेडियल नर्व से सप्लाई हुई. ओके, रेडियल नर्व पहले रेडियल ग्रूव में पास होती है, फिर रेडियल ग्रूव में पास होने के बाद ये ब्रांच निकलती है. ओके, आफ्टर पासिंग इन द रेडियल ग्रूव, द लोअर लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म originates from the radial nerve. Next is the nerve supplying the upper medial part of the arm is the intercostobrachial nerve, which root value is T2, क्योंकि ये ब्रांच ही है सेकेंड इंटरकोस्टल नर्व की. ओके, और ये अपर मीडियल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करती है. इसके अलावा कुछ पोस्टीरियर पार्ट में भी सप्लाई करती है. नेक्स्ट इज द अपर मीडियल, तो ये हो गया. नेक्स्ट लोअर मीडियल रीजन ऑफ द आर्म को कौन सप्लाई करता है? तो वो है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, विच इज अ ब्रांच ऑफ
ब्रैकियल प्लेक्सिस, ब्रैकियल प्लेक्सिस में भी कहाँ से, मीडियल कॉर्ड की सबसे छोटी ब्रांच होती है। तो ब्रैकियल प्लेक्सिस से अराइज हुआ, तो ब्रैकियल प्लेक्सिस में मीडियल कॉर्ड से, मीडियल कॉर्ड की रूट वैल्यू इसमें हो गया T1, T2, यहाँ से इसका अराइजिंग होती है, ठीक है, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म की, और ये सप्लाई किसको करती है, लोअर मीडियल रीजन ऑफ द आर्म को। नाउ दिस वाज अबाउट द आर्म, नेक्स्ट इज अबाउट द फोर आर्म। सो फोर आर्म में 3 नर्व का सप्लाई होता है। अच्छा, एक चीज और छूट गई इसमें, पोस्टीरियर नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म विच इज अ ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व, जो कि एक्जिला में देता है। रेडियल नर्व की एक ब्रांच जो एक्जिला से ओरिजिनेट होती है वो होती है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, जिसकी रूट वैल्यू होती है C5। दिस वॉज अबाउट द आर्म। नेक्स्ट इज द फोर आर्म। सो फोर आर्म में थ्री नर्व्स होती हैं। एक होती है लेटरल रीजन में जो सप्लाई करती है, लेटरल साइड में जो सप्लाई करती है एंटीरियर पार्ट के, एक वो जो मीडियल साइड में सप्लाई करती है, और एक जो पोस्टीरियर साइड में सप्लाई करती है। तो जो लेटरल साइड में सप्लाई करती है उसका नाम होता है लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, इसकी रूट वैल्यू होती है C5C6 एंड इट इज अ ब्रांच ऑफ मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। ये अराइज कहाँ से होती है, तो ये जो अपने ब्रैकियल प्लक्स यहाँ पे होता है टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई, सो उसके लेटरली ये रन करती है, और ये और कितना 2 to 3 सेंटीमीटर अबव द बेंड ऑफ द एल्बो, यहाँ से रन करती हुई आती है, और ये लेटरल साइड ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई करती है। एक होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, जो मीडियल साइड को सप्लाई करती है। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म ये ब्रैकियल प्लेक्सिस से अराइज होती है। ब्रैकियल प्लेक्सिस में भी कहाँ से, मीडियल कॉर्ड से। तो इसकी रूट वैल्यू होती है C8, T1। लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म, सॉरी नॉट आर्म, यहाँ पर था अपना मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म। मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म जो मीडियल साइड ऑफ द एंटीरियर साइड सरफेस ऑफ द फोर आर्म को सप्लाई करेगी, जो अराइज होगी फ्रॉम मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रैकियल प्लेक्सिस, जिसकी रूट वैल्यू है C8, T1। और इसके अलावा यहाँ पर होती है ब्रैकियल आर्टरी, एक्सिलरी आर्टरी यहाँ होती है, यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी होती है। सो इसके भी ये लेटरली, इसके भी थोड़ा और मीडियली रन करते हुए आती है। मीडियल बहुत मीडियल होती है, लेटरल बहुत लेटरल होती है। इतना लेटरल होती है कि टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रैकाई के भी लेटरल होती है, और मीडियल वाली एक्सिलरी आर्टरी और ब्रैकियल आर्टरी के भी मीडियली होती है। नेक्स्ट इज द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म। सो द पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म इज अ ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व एंड इट्स रूट वैल्यू इज, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द आर्म, इसकी रूट वैल्यू होती है C6 to C8। रेडियल नर्व ये ब्रांच देता है इन द रेडियल ग्रूव, और ये नर्व डिसेंड करती है अप टू द पोस्टीरियर टू द लेटरल कॉन्डाइल, और ये सप्लाई कहाँ करेगी, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द फोर आर्म। दिस वॉज अबाउट द आर्म एंड फोर आर्म। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द पाम, द डॉर्सम ऑफ हैंड एंड द डिजिट्स। सो इनके लिए हम सिर्फ 3 नर्व्स का नाम लेंगे, मीडियन नर्व, रेडियल नर्व एंड अल्नार नर्व। इन तीनों नर्व से ही ये पूरा पाम और डिजिट सप्लाई होगा। अपन पाम और डिजिट को अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, सेम में पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ और रह गई थी कि लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द फोर आर्म जो है, ये लेटरल साइड ऑफ द आर्म को सप्लाई करेगी, इसके साथ में बॉल ऑफ द थंब को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। नेक्स्ट इज मीडियन नर्व। सो मीडियन नर्व जो होती है जब इस रीजन में आती है, पाम के रीजन में, तो यहाँ पे आते आते ये 2 सेट्स ऑफ क्यूटेनियस नर्व देती है। 2 सेट्स बोला है मैंने, 2 क्यूटेनियस नर्व नहीं बोला, 2 सेट्स बोला है। सो द फर्स्ट सेट इज पामर क्यूटेनियस नर्व, जो कि इस एरिया को सप्लाई करेगी। ये एरिया होता है lateral 2/3, lateral 2/3 of the palm is supplied by the palmar cutaneous nerve which is a branch of median nerve. इसकी रूट वैल्यू होती है C6 C8। नेक्स्ट इज जो डिजिट्स हैं, जो डिजिट्स की पामर सरफेस है, मतलब ओवरऑल 5 डिजिट होते हैं जिनमें से 1, 2, 3 और ये आधा।
दिस इज सप्लाइड बाय मीडियन नर्व की दूसरी सेट ऑफ ब्रांचेस, जिनको कहते हैं पामर डिजिटल ब्रांचेस। इनकी भी रूट वैल्यू C6 to C8 होती है। अब ये जो मीडियन नर्व की पामर डिजिटल ब्रांचेस होती हैं, ये होती हैं पांच होती हैं। तो इन 5 में से कुछ होती हैं प्रॉपर और कुछ होती हैं कॉमन। अब प्रॉपर और कॉमन क्या होता है ये बताता हूँ। जो प्रॉपर पामर डिजिटल नर्व्स होती हैं, ये सिर्फ और सिर्फ एक ही फिंगर को सप्लाई करती हैं, और जो कॉमन होती हैं वो एक जो क्लेफ्ट होता है, डिजिटल क्लेफ्ट, यहाँ पे आके 2 पार्ट में डिवाइड कर जाती हैं। ओके, सो 5 होती हैं, जिनमें से एक हो जाती है जो थंब को ऐसे ही सप्लाई कर देती है, लेटरल टू द थंब, लेटरल साइड ऑफ द थंब, लेटरल साइड ऑफ द पाम ऑफ द थंब। और एक होती है जो मीडियल साइड ऑफ द पाम ऑफ थंब को सप्लाई करती है। ये दोनों है प्रॉपर डिजिटल पामर क्यूटेनियस नर्व्स विच राइजेस फ्रॉम द मीडियन नर्व। और एक तीसरी होती है जो कि लेटरल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर को सप्लाई करती है। बाकी दोनों कॉमन होती हैं, जो कि ये डिजिटल क्लेफ्ट पे डिवाइड होती हैं, और मीडियल साइड ऑफ द इंडेक्स फिंगर, लेटरल साइड ऑफ द थंब, medial side of the thumb, lateral side of the middle finger, medial side of the middle finger and lateral side of the ring finger, इनको सप्लाई करती हैं। ओके, तो ये मीडियन नर्व की 5 ब्रांचेस हो गई, जिनमें से 1, 2 और ये 3 प्रॉपर होती हैं और 2 होती हैं कॉमन। नेक्स्ट इज अबाउट द अल्नार नर्व। सो अल्नार नर्व का नर्व सप्लाई, अल्नार नर्व जो होती है, अल्नार नर्व 3 सेट्स ऑफ क्यूटेनियस नर्व्स में डिवाइड होती है। 3 सेट्स में से एक सेट होता है जो पाम के 1/3 एरिया को सप्लाई करता है, एक होती है जो डॉर्सम के हाफ को सप्लाई करता है, और एक होती है जो डिजिट्स को सप्लाई करता है, दोनों साइड के। सो इन दिस, तो हमने अभी बात की मीडियन नर्व की। मीडियन नर्व के 2 सेट्स ऑफ क्यूटेनियस ब्रांचेस होता है। एक होती है पामर क्यूटेनियस ब्रांच, जो कि 2/3 ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द पाम को सप्लाई करेगी, और दूसरी होती है पामर डिजिटल ब्रांचेस, जो कि 5 होती हैं नंबर में, और जो सप्लाई करेंगी 3 हाफ ऑफ द phalanges और द डिजिट्स ऑफ द पामर साइड। नेक्स्ट इज द अल्नार नर्व। तो अल्नार नर्व 3 सेट्स ऑफ क्यूटेनियस नर्व्स में डिवाइड होती है। एक होती है जो पाम को सप्लाई करती है, एक होती है जो डॉर्सम को सप्लाई करती है, और एक होती है जो डिजिट्स को सप्लाई करती है। तो जो पाम को सप्लाई करती है उसका नाम होता है पामर क्यूटेनियस ब्रांच। इसकी रूट वैल्यू होती है C7, C8। अब होता क्या है कि जो रेडियल नर्व है, जो अल्नार नर्व है, अल्नार नर्व के पामर क्यूटेनियस ब्रांच तो होगी जो इसको सप्लाई करेगी। नेक्स्ट जो डॉर्सम को सप्लाई करेगी वो होगी डॉर्सल ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। इसकी भी रूट वैल्यू सेम है C7, C8। ये हाफ ऑफ द डॉर्सम को सप्लाई करेगी। और नेक्स्ट होते हैं अपने जो डिजिट्स को सप्लाई करते हैं। तो डिजिट्स को 1.5 ऑफ द पामर सरफेस ऑफ द डिजिट्स को सप्लाई करेगी अल्नार नर्व की पामर डिजिटल ब्रांच ऑफ द अल्नार नर्व, जो कि होती है 2 इन नंबर। जो एक सप्लाई करेगी मीडियल साइड ऑफ द लिटिल फिंगर, और एक होगी जो डिजिटल क्लेफ्ट पे डिवाइड होके मीडियल साइड ऑफ रिंग फिंगर एंड लेटरल साइड ऑफ लिटिल फिंगर को सप्लाई करेगी। सो 2 क्यूटेनियस ब्रांचेस होती हैं। और जो डॉर्सम पे होती हैं, डॉर्सम पे जो ब्रांचेस सप्लाई करती हैं वो हाफ ऑफ द मसल्स ऑफ द डॉर्सम को ही सप्लाई करती हैं, पूरा का पूरा। नेक्स्ट इज द लास्ट, रेडियल नर्व। सो द रेडियल नर्व की सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व सप्लाई करेगी हाफ ऑफ द डॉर्सम ऑफ द हैंड को, और ये इसके अलावा सप्लाई करेगी प्रॉक्सिमल पार्ट्स ऑफ द phalanges। लेकिन डिस्टल पार्ट को तो मीडियन नर्व सप्लाई कर रही है, तो उसकी तो बात ही नहीं करेंगे अपन। तो अब अपन इनके कुछ कोर्स देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक कौन सी नर्व जाती है। जैसे कि जो मीडियन नर्व है, मीडियन नर्व रिस्ट से थोड़ा सा ऊपर अराइज होती है, और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम जो यहाँ पर होता है उसके सुपरफिशियली जाती है, और फिर उसके बाद सप्लाई आती है।
नेक्स्ट इज जो दिस वाज पामर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द मीडियन नर्व, जो कि डिस्क के थोड़ा सा ऊपर राइज होती है और फ्लेक्सर रेटिकुलम के सुपरफिशियली जाती है. नेक्स्ट इज द पामर क्यूटेनियस नर्व ऑफ द अल्नार नर्व. ये जो पामर क्यूटेनियस ऑफ द अल्नार नर्व है, ये फोर आर्म के मिडल से राइज होती है और ये भी सुपरफिशियल टू फ्लेक्सर रेटिकुलम आती है और फिर इसको सप्लाई करती है. नेक्स्ट इज द डोर्सल ब्रांच ऑफ द अल्नार नर्व, जो कि ये है. अब ये किसको सप्लाई करेगी? वो तो अपन ने बता ही दिया कि हाफ ऑफ द डोर्सम को सप्लाई करेगी, लेकिन उसके अलावा ये कहाँ से राइज होती है? तो रिस्ट के 5 सेंटीमीटर ऊपर से राइज होती है और जो अल्नार नर्व का मेन ट्रंक है उसके साथ ही नीचे आती है पेसिफॉर्म बोन के अलोंग, और फिर उसके बाद यहाँ पे आके वो आगे आते आते डोर्सल रेडियल नर्व्स में डिवाइड होती है, जो कि होती हैं 3 या फिर कभी कभी होती हैं 2. नेक्स्ट इज द सुपरफिशियल टर्मिनल ब्रांच ऑफ द रेडियल नर्व, जो कि वही हाफ ऑफ द digit dorsum of the hand and the proximal parts of the digits at the dorsal side इनको सप्लाई करेगी. अब ये कहाँ से कहाँ तक रन करती है ये देखना है. तो जो अपना लेटरल एपिकॉन्डाइल ऑफ ह्यूमरस है, यहाँ से ये आएगी, नीचे आएगी रेडियल आर्टरी. जो है रेडियल आर्टरी यहीं कहीं होती है रेडियस के ऊपर, तो रेडियल आर्टरी के अलोंग आएगी और इसके बाद ये लेटरल टू रेडियल आर्टरी आएगी. फिर इसके बाद ये मीडियली आएगी धीरे धीरे और रेडियस के ऊपर वाइंड करेगी, फिर आगे जाके ब्रांचेस में अराइज होगी. सो दिस वाज अबाउट द क्यूटेनियस नर्व्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डर्मेटोम्स. थैंक यू.